Hello everyone. Today we are going to learn subtraction of rational numbers. So there are some steps which we have to keep in mind. The first is find a common denominator. Now here if the denominators are different, what you have to do is you have to convert this. You have to first find the LCM and convert this into a like fractions. Once the denominators are same, then you have to subtract the numerators. Alright. And if there are some there's the answer is 7 upon 2. Now here the answer is 7 upon 2. Now the 7 upon 2 you cannot reduce. But in case if you get the product, that is 3 upon 6. Now this 3 upon 6 you can reduce, that is 3 ones are and 3 twos are. So wherever you can reduce to the lowest term, there you have to reduce. Alright, let us solve the exercise and then your doubts will be clear. Now exercise 3.3, we have already finished question number 1, question number 2. Let us solve this third sum. That is, third sum is subtract. Now minus 6 from 13. Now you have to subtract minus 6 upon 13 from this number. Okay, so from this 4 upon 13 you have to subtract this number, that is minus 6 upon 13. So here I will write the question. The question is subtract minus 6 upon 13 from 4 upon 13. So I will write first 4 upon 13 because from this number you have to subtract the other number. So that is why I will write first 4 upon 16 minus 6 upon 13. This is your question. Now here the denominators are same, so I will write 13 only once, and here 4 is there. Now here minus will be plus, so I will write plus 6. Now 6 plus 4 is 10 upon 30. Now can you reduce this? No, you cannot reduce this, and so your final answer is 10 upon 13. Okay, clear? Now let us do the second sum now. The second sum is minus 1 upon 2 from minus 2 upon 3. Okay, this is your sum. So I will write the second sum. The second sum is you have to subtract minus 2 upon 3. From which number you have to subtract? So I will write minus sign here, from minus 1 upon 2. This is your sum. Okay, now here the denominators are different. So what you have to find? You have to find the LCM of 2 and 3. So the LCM of 2 and 3, like here it will be 6 only, but we will solve, that is 2 ones are 2, 3 I will write as it is, and 3 ones are 3. 3 twos are 6. So the LCM will be 6. So now what you have to do is, here you have to write 2 upon 3. Minus 2 upon 3, and this 3 you should multiply by 2 so that you will get the answer as 6. Here also you will multiply by 2. Now this is minus is plus. So I will write here plus, and this will become 1 multiplied by not 6, but 1 multiplied by 3, and down also you have to write 2 multiplied by 3. Why I have written multiply by 3? So that we get the denominator 6. And why we want 6? Because our LCM is 6. Clear? Now here 2 twos are is minus 4 upon 6. There will be a plus sign. Here will be 3 ones are 3 plus 6. Now you have a same denominator, so you will write 6 as it is. Now minus 4 plus 3. Now again here minus plus. So minus plus will be minus. So 4 minus 3, you will get the answer, that is 1. And the sign of the bigger number. So which is the bigger number here? 4 is a bigger number. So what is the sign of this 4? Minus. So you're going to put here minus 1 upon 6 will be your answer. Clear how to do? Alright, let us do now the third sum. The third sum is 5 upon 9 from minus 2 upon 3. Let us do this. I will write down the question here. Third one, the minus 2 upon 3 from is there. So you have to put minus here, 5 upon 9. Now here also the denominators are different, so we have to find the LCM. So LCM, this will be 3 ones are 3 and 3 threes are 9. Again 3 ones are 3. Alright, 3 multiplied by 3 is 9. So here the LCM is 9. Now here already you have denominator has 9. So you don't have to do anything here. Alright, you have to multiply this here. That is 3, if you multiply by 3 you will get 9. So down if you multiply, आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी 3 के साथ multiply ही करना पड़ेगा. यहाँ पे आ जाएगा minus की sign 5 upon 9. Clear? Now 2 threes are minus 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 minus 9. Now the denominators are same, so I will write the denominator only once, and here it will be minus 6 minus 5. ठीक है, clear? Now minus will be plus. So 6 को 5 के साथ आपको प्लस करना पड़ेगा. जब आप 6 को 5 के साथ प्लस करके what answer you will get? 11. Alright? और since the sign of the greater number, so 6 is the greater number, उसकी sign क्या है? Minus. So you are going to write here minus 11 upon 9. Clear how to solve? इट इज ईजी. आपको सिर्फ पहले क्या फाइंड आउट करना है? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट. ठीक है, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ वन. फाइंड. नाउ ये आपको सॉल्व करना है. हियर ऑल्सो इफ यू सी डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. ठीक है, आई विल जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 upon 63 minus
-6/21. This is your question. Okay. Now again 63 and 21 are different denominators, so we have to find the LCM. So I will write here 63 and 21. चलो इसका LCM find out करते हैं अभी. दोनों भी जो number है, that is 63 and 21, it's not divisible by 2, it is divisible by 3. So I will write 3 21s are 63 and 3 7s are 21. Again divisible by 3, so 3 7s are 21 and 7 we will write as it is. Now दोनों भी 7 के टेबल से divisible है, so I will write 7 1s are and 7 1s are. So here 7 3s are is 21 and 21 3s are is 63. So हमारा LCM क्या आया? 63 आया. अभी यहाँ पे we don't have to do anything क्योंकि LCM 63 ही है. ठीक है, so don't do anything. यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा. That is -6 multiply by 3 क्यों करेंगे? क्योंकि 21 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे we will get the answer as 63. That is the reason. ठीक है, तो यहाँ पे we will write 5/63. यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा. नाउ 6 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे you will get the answer that is -18/63. ठीक है, अभी 63 we have got the same denominator, so I will write once it is, और यहाँ पे आ जाएगा 5. नाउ माइनस will be plus, so I will write +18. ठीक है, यहाँ तक हो गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? अभी 18 को हम लोग को 5 के साथ ऐड करना पड़ेगा. जब आप 18 को 5 के साथ ऐड करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 23/63. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. समझ में आया? ऑलराइट, ओके, लेट अस डू द सेकंड सम नाउ. नाउ द सेकंड सम भी बहुत ईजी है. दिस इज द वन. आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट बिकॉज सब जगह पे नेगेटिव की साइन है, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. लेट अस सॉल्व इट और आपको फिर समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन नाउ हियर. दैट इज -6/13. यहाँ पे आ जाएगा -7/15. नाउ 13 और 15 इज अगेन अ डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करने का. सो बेसिकली 13 तो खुद के ही टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता. सो आई विल राइट 13 वैसे के वैसे ही, और 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है. करेक्ट. सो आई विल राइट 3 5s are 15. यहाँ पे वापस 13 वैसे के वैसे, देन 5 1s are 5, 13 वापस वैसे के वैसे, देन 13 1s are 13. ओके ना. अभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 multiply by 5. 3 multiply by 5 is 15. Now 15 multiply by 13. जब आप 15 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 195. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या आ जाता है डिनोमिनेटर, सॉरी एलसीएम क्या आया हम लोग का 195. अभी ये 119 को आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 13 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किसको? 13 को जब आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 195. ठीक है, सो अभी अगर हम लोग ने नीचे मल्टीप्लाई बाय 15 किया, ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 15 ही करना पड़ेगा. फिलहाल ये जो साइन है उसको हम लोग वैसे के वैसे रखेंगे ना. अभी भी नीचे भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 15 को मल्टीप्लाई बाय 13 के साथ ही करेंगे. ऑलराइट, नीचे मल्टीप्लाई बाय 13 किया है तो ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय, अभी अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 13 किया ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 13 ही करना पड़ेगा. सो 15 6 इज 90. तो यहाँ पे आई विल राइट -90 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 195. ये माइनस की साइन हम लोग वैसे के वैसे रखेंगे. अगेन नाउ 7 को जब हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट द आंसर दैट इज -91. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 195. अभी 195 इज अ कॉमन, तो मैं यहाँ पे एक बार रो ले लूँगी दैट इज 195. नाउ -90 आई विल राइट एज इट इज. दिस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +91. ना अगेन 91. अभी नाउ अगेन माइनस प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 91 - 90 यू विल गेट द आंसर एज 1/195. दिस इज योर आंसर. ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम. नाउ द नेक्स्ट सम इज 3 1/8 -1 5/6. अभी आप अगर देखोगे तो ये सब क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ improper fraction. So first I will write down the question, the third sum, that is 3 1/8. ठीक है, माइनस अभी -1 15 नहीं है 5/6. ठीक है, so let us convert this. 8 3s are +1, 8 3s are 24 +1 is 25/8. ऑलराइट, ना यहाँ पे माइनस लिखेंगे और लेट अस कन्वर्ट दिस दैट इज 6 1s are 6 + 5 is 11. सो यहाँ पे आ जाएगा -11/6. ठीक है, नाउ वी विल राइट एज इट इज. पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को ओपन करते हैं. सो 25/8 लिखते हैं और यहाँ पे माइनस विल बी +11/6. ठीक है, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है. सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा 8 और 6 का. लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम दैट इज 2 4s are 8, 2 3s are 6. नाउ 2 2s are 4 और 3 वैसे का वैसे ही रहेगा. 2 1s are 2, अगेन 3 वैसे का वैसे,
नाउ 3 1 जा 3, ऑलराइट। तो अगर हम लोग इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो एलसीएम हम लोग का क्या आया, 24 आया, ऑलराइट। सो नाउ अभी आपको 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट द आंसर दैट इज 24। सो अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना पड़ेगा। प्लस अभी 6 को भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। 6 4 जा 24, सो 6 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, सो दैट वी गेट द आंसर दैट इज 24। नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 4 ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर आई विल गेट 24 दैट इज कॉमन, ऑलराइट। नाउ 25 multiply by 3 you will get the answer that is 75, plus 11 multiply by 4 you will get the answer that is 44, ठीक है। नाउ अभी जब 75 को हम लोग ऐड करेंगे विथ 44 वी विल गेट द आंसर दैट इज 119 अपॉन 24। नाउ दिस इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यूआरडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस डू द डिवीजन, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे 119 और यहाँ पे आ जाएगा 24, ऑलराइट। सो नाउ 24 4 आ जाएगा 96। अभी नाउ 119 को जब हम 96 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 23। सो 4 क्या हुआ हमारा, क्यू हो गया, दैट इज क्वेश्चन। ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया हम लोग का डिवाइजर। सो बेसिकली क्यू क्या है 4, सो आई विल राइट 4 फर्स्ट, ऑलराइट। फिर हम लोग का रिमाइंडर क्या है 23, दैट आई विल राइट, और यहाँ पे आ जाएगा 24। क्लियर, समझ में आया कैसे करते हैं, ऑलराइट। आई विल जस्ट इरेज दिस सम so that we can do the another sum here, alright। now next is fifth sum। now fifth sum है कि the sum of two rational numbers is 2 upon 5। तो एक दो नंबर्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे प्लस और प्लस करके, ऐसे दो नंबर्स है, ओके। सम बोला हुआ है ना, तो सम मतलब क्या आ जाएगा, बेसिकली प्लस, इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस है, ठीक है। सो दो रैशनल नंबर्स को जब ऐड करोगे इसका आंसर आ जाएगा 2 upon 5 आ जाएगा, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज -4 अपॉन 7, पर एक जो है उसमें से ये है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर, ये दूसरा नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये फिफ्थ सम है, सो लेट अस कंसीडर द अदर नंबर दैट इज x, ठीक है। सो आई विल राइट हियर लेट द अदर रैशनल नंबर लिखना पड़ेगा हम लोगों को, रैशनल नंबर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, दैट इज NOBX, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे -4 अपॉन 7, क्योंकि एक जो नंबर है यहाँ पे है ना, ये पहला नंबर क्या है -4 अपॉन 7, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा -4 अपॉन 2। दूसरा नंबर वी डोंट नो विच इज अनदर नंबर, सो वी हैव टू फाइंड आउट ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, ओके। हम लोग को क्या, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, हम लोग को क्या बोला हुआ है कि दो नंबर्स है, ठीक है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, और ये दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, समझ में आया, ओके। सो नाउ फॉर दैट आई हैव रिटन द सम। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि यहाँ पे जो है ये x हम लोग बाजू में लिखेंगे, ठीक है, और ये नंबर हम लोग ये बाजू लेके जाएंगे, ठीक है। सो आई विल राइट x इट इज एज इट इज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन 5, ठीक है। नाउ ये जब माइनस साइन है, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इक्वल टू अगर साइन रहेगा, यहाँ पे अगर कोई नंबर है विद एडिशन, फॉर एग्जांपल +2, वो ये बाजू जाएगा, दैट व्हेन इट विल गो टू द राइट हैंड साइड दिस विल बिकम एज माइनस। अगर यहाँ पे कोई माइनस है वो बाजू जाएगा, इट विल बिकम +2, ओके। इन द सेम वे ये -4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा इट विल बिकम +4 अपॉन 7। समझ में आया, ओके। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस ना। अभी 2 और 7 ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन लोग का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो बेसिकली 2 एंड 7 एक खुद के टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते, तो इन लोग का एलसीएम क्या रहेगा 5, दे वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, सो 5 7 35 ही रहेगा। आपको अगर सॉल्व करके देखना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 5 1 के टेबल में आ जाएगा, 7 यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर 7 5 क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 35 एज दी एलसीएम। क्लियर, नाउ अभी x वी विल राइट एज इट इज, यहाँ पे अभी 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी गेट द आंसर एज 35। नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 7 ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5, नीचे किया हुआ है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। नाउ हियर 14 अपॉन 7 2 14, 35 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 35 और 4 5 20, ठीक है। दिस इज योर सम। अभी 35 हम लोग एक बार लिखेंगे, और 14 को 20 के साथ जब ऐड करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 34। सो योर x इज नथिंग बट 34 अपॉन 35। तो ये जो इन लोग आपको क्वेश्चन था फाइंड आउट द अदर नंबर, तो ये अदर नंबर क्या है 34 अपॉन 35 है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, ऑलराइट। लेट अस डू नाउ द सिक्स्थ सम। द सिक्स्थ सम इज what rational number should be added to -5 upon 13
टू गेट -7/8। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि एक रैशनल नंबर, आप कौन से रैशनल नंबर को ऐड करोगे टू दिस नंबर सो दैट यू गेट द आंसर दैट इज -7/8। ऑलराइट, चलो लेट अस सॉल्व करते हैं पहले। आई विल जस्ट इरेज दिस। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू -5/13। सो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट द अदर नंबर बी 6 1। दिस इज 6th one। सो आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन कि लेट द अदर नंबर बी x। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि -5/12 प्लस यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि दूसरा नंबर जो है वो हम लोग को पता नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट। सो विल राइट हियर x टू गेट -7/8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -7/8। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू द सेम वे जैसे 5th one किया था। x ये बाजू आ जाएगा, -7 यहाँ पे लिखेंगे 8। नाउ -5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा दैट विल बिकम +5/12। ठीक है, क्लियर ना। 8 और 12 ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। ऑलराइट, चलो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो वी राइट 2 4s are 8, 2 6s are 12। Now 2 2s are 4, 2 3s are 6। This will be 2 1s are 2, 3 वैसे का वैसा रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 1s are 3। So what will be our LCM? 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 multiplied by 3 is 24। तो हम लोग का LCM क्या आया? 24। Alright, so I will write x as it is। यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 so that we get the answer 24। अभी नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों? क्योंकि 12 2s are 24। सो अभी नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना पड़ेगा। गॉट इट? यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 7 3s are -21 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 24, 12 2s are 24 एंड 5 2s are 10। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कैसे किया हुआ है? क्लियर? वी डू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज नाउ। अभी क्या है यहाँ पे कि हम लोग को सेम डिनोमिनेटर्स मिले, सो आई विल राइट इट एज इट इज, दैट इज 24। एक के बाद लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -21 प्लस 10। क्लियर? समझ में आया? नाउ दिस -21 और यहाँ पे है प्लस, सो माइनस प्लस विल बी माइनस। सो बेसिकली 21 को -10 करना पड़ेगा। सो जब हम माइनस करेंगे वी विल गेट द आंसर हियर, दैट इज 11। एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो 21 की साइन क्या है? माइनस। सो आई विल राइट हियर -11/24। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? समझ में आया कैसे किया? ये प्रीवियस सम की तरह ही था। Now let us do the 7th sum, that is what rational number should be subtracted from -2/3 to get this। So एक नंबर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट अनदर नंबर। एक नंबर हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके साथ अगर आप ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज -5/6। तो ये नंबर कौन सा है हम लोग को पता नहीं, सो वी विल अज्यूम इट हैज x। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस विल बी लेट द रैशनल नंबर, या तो लेट द रैशनल, पता नहीं हम लोग को कौन सा है, सो वी विल अज्यूम इट हैज x। सो लेट द रैशनल नंबर बी x। ठीक है, और फिर क्या क्वेश्चन पूछा है? -2/3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -2/3, यहाँ पे आ जाएगा -x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -5/6। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सी यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे ऑल्सो, कि ये जो -2 का आप वो बाजू में लेके जा सकते हो, पर जब आप वो बाजू में लेके जाओगे ये x की वैल्यू यहाँ पे माइनस रहेगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट दिस -2 एज इट इज अपॉन 3, और ये नंबर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए लाएंगे। सो इफ ये नंबर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इट विल बिकम +5/6, और ये जो -x है दैट वी विल शिफ्ट हियर एंड इट विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि आंसर तो हम लोग को पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, क्लियर ना। अभी यहाँ पे क्या है कि दिस 3 and 6 जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 3s are 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 एज इट इज, देन 3 1s are 3 1s are 3 2s are क्या आता है 6। तो आपका एलसीएम क्या आया? यहाँ पे 6 आया। क्लियर नाउ, यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्लियर, आपको सिर्फ ये फर्स्ट फ्रैक्शन देखना है। सो हियर 3 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर है 6। नीचे मल्टीप्लाई किया बाय 2 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, +5/6 इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ यहाँ पे -2 2s आ जाएगा 4/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ 6 कॉमन डिनोमिनेटर हुआ, सो वी कैन राइट इट वंस, -4 प्लस 5। नाउ प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 5 को जब आप 4 के साथ माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर एज 1, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो 5 की साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे 1 विल बी पॉजिटिव अपॉन ये जो 6 है डिनोमिनेटर दैट वी हैव टू राइट। सो बेसिकली x की वैल्यू क्या हो गई? 1/6। समझ में आया?
Okay, it is very easy, not that difficult. Okay, now we have finished the subtraction sum also. The next sum, that is the eighth one, is multiplication, which we are going to do in the next video. Thank you.